اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح، حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح، یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وعلی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین، وعلی لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تر تعریف، تمام تر حمد و ثنا زیبا ہیں اس رب کائنات سے جو خالق بھی ہے اور مالک بھی۔ ایسا خالق، ایسا خلق کرنے والا تو اس کے جیسا کوئی خالق نہیں، اور ایسا مالک کہ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور بے شک اس نے اپنے بندوں کو اس دنیا میں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اور بعد حمد و ثنا پروردگار ہمارا بہترین درود و سلام محمد و آل محمد پر، جن کے صدقے سے یہ کائنات بنی۔ درود پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زندگی کا لفظ میں بول دیتا ہوں، اور یقیناً اس زندگی کا لفظ سن کر ہم زندہ دلوں میں وہ زندگی آ جاتی ہے جو ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، مگر اس دنیاوی زندگی کو زندگی کہنا زندگی کے ساتھ ایک مزاج ہے، کیونکہ یہ زندگی ایسی زندگی ہے جس میں نہ ہی تو ہمیں آنے کا اختیار ہے اور نہ ہی اس طرح سے ہمیں جانے کا اختیار ہے۔ جب پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا کہ جاؤ تو ہم اس دنیا میں آ گئے، اور جب وہ ہمیں حکم دے گا کہ واپس آ جاؤ تو ہم مر جائیں گے اور ہمیں واپس جانا پڑے گا۔ موت برحق ہے، موت کا آنا ضروری ہے، اور جس کا آنا ضروری ہو وہ برحق ہوتی ہے۔ اس جملے کو غور سے سنیے گا، جس کا آنا ضروری ہو وہ برحق ہوتی ہے، پھر چاہے وہ موت ہو یا امام ہو۔ درود پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، جو زندگی ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں یہ حقیقی زندگی نہیں ہے۔ انسان کیا کچھ کرتا ہے اس زندگی کے لیے، مگر آخرکار اسے واپس اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور یہ اس زندگی میں اور اس زندگی کے بعد والی زندگی میں فرق ہے۔ یہ والی زندگی میں موت ضروری ہے، لیکن جو اس کے بعد ہماری زندگی شروع ہوگی اس میں موت نہیں آئے گی، اس میں ہمیں زندہ رہنا ہے۔ تو پھر ہم محمد و آل محمد کو یاد کیوں نہ کریں، کیونکہ محمد و آل محمد نے ہمیں، وہ اس دنیا سے بھی واقف ہیں اور اس دنیا سے بھی واقف ہیں، اور انہوں نے ہمیں وہ طریقے بتائے ہیں جن پر عمل کر کے ہم اس دنیا میں بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس زندگی میں بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کے بعد والی زندگی میں بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بے شک محمد و آل محمد ہر گناہ سے مبرہ ہیں، اور ایسے اس کو مذہب کی اصطلاح میں معصوم کہتے ہیں۔ درود پڑھ دیجیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جان محترم، معصوم میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کچھ معصوم ایسے ہیں جو صرف وہی کام کرتے ہیں جو صحیح ہوتا ہے، وہ پہلے کام کرنے سے پہلے، عمل انجام دینے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ عمل صحیح ہے کہ نہیں۔ انبیاء کے معصوم ہونے میں اور ان 14 معصومین کے معصوم ہونے میں بہت فرق ہے۔ انبیاء جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے اسے دیکھتے ہیں کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط، پھر اسے سر انجام دیتے ہیں، لیکن جو کام یہ 14 معصومین انجام دیتے ہیں وہ کام صحیح ہوتا ہے۔ انبیاء حق کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن یہ ان 14 معصومین کے پیچھے حق چلتا ہے۔ یہاں یہ اگر کہیں پہ بول دیں تو بولنا حق ہو جاتا ہے، اگر کہیں چپ رہیں
तो चुप रहना हक हो जाता है। अगर कहीं ये बैठ गए तो इनका बैठना हक हो गया। अगर कहीं खड़े हो गए तो खड़े होना हक हो गया। जिस तरह इन्होंने नमाज़ पढ़ ली वही नमाज हक है। जिस तरह इन्होंने रोज़ा रखा वही रोज़ा हक है। कहीं पर जागते रहे तो इनका जागना हक हो गया। और अगर कहीं पर चादर तान कर सो गए तो इनका सोना हक हो गया। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जाने मोहतरम, इन 14 मासूमीन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई भी काम अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं अंजाम दिया। जभी तो परवरदिगार ने कहा कि इनका अमल मेरा अमल है, इनका हाथ मेरा हाथ है, इनकी आँख मेरी आँख है। परवरदिगार आलम ने सिवाय मोहम्मद व आले मोहम्मद के ये किसी से तो नहीं कहा कि इनका अमल मेरा अमल है। तो फिर शान तो देखिए मेरे 14 मासूमीन की कि खुदा ने इन्हें किस तरह बनाया। अगर वो महमूद है तो इन्हें मोहम्मद बनाया, अगर वो आला है तो इन्हें अली बनाया, अगर वो फातिरुस समावाति वल अर्ज़ है तो इन्हें फ़ातिमा बनाया, अगर वो मुहसिन है तो इन्हें हसन बनाया, अगर वो कदीमुल एहसान है तो इन्हें हुसैन बनाया, अगर वो माबूद है तो इन्हें ज़ैनुल आबिदीन बनाया, अगर वो इल्म गैब वल शहदा है तो इन्हें बाक़िरुल उलूम बनाया, अगर वो सादिकुल वाज़ है तो इन्हें जाफ़र सादिक बनाया, अगर उसे वो काज़िमुल गैज़ है तो इन्हें मूसा काज़िम बनाया, अगर उसको तकवा पसंद है तो इन्हें मोहम्मद तकी बनाया, अगर वो नकी बिज़ात है तो इन्हें अली नकी बनाया, अगर वो अस्करी एहसान का हामिल है तो इन्हें हसन अस्करी बनाया, और अगर वो खुद गैब में है तो उसने अपनी आखिरी हुज्जत को भी गैब में रखा। दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जाने मोहतरम, ये 14 मासूमीन दुश्मनों के भरे मजमे में खड़े होकर कहते थे कि हम हुज्जत खुदा हैं, हम अल्लाह की मशीयत हैं, हम अल्लाह का इरादा हैं। अब यहाँ मैं अपनी बात को मुख्तसर करता चलूँ कि जब वलीद ने इमाम हुसैन को बुलाया कि ए हुसैन, यजीद की बैत कर लो वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब जो इमाम हुसैन ने जवाब दिया वो इमाम हुसैन का ही जवाब था, जो एक मासूम की ही ज़बान से सचता था। अगर इमाम हुसैन की जगह कोई और होता तो अल्लाह जाने क्या जवाब देता, लेकिन हुसैन का जवाब हुसैन ही का जवाब था। उन्होंने फरमाया, ए वलीद, तू मुझसे बैत मांगता है, मैं अली इब्ने अबी तालिब का बेटा हूँ और अली का बेटा कभी यजीद की बैत नहीं कर सकता। बस अज़ादारों, मैं आपकी सहमतों को तमाम करता हूँ। अय्याम ऐसा रुखसत का लग है, आज रोने में कोई कमी ना हो। आज जनाब सैयदा को उनके भरे घर का पुरसा पेश करना है। अरे ज़हरा के सैयदा के नूरैन को उम्मत ने मक्तल में इतना मारा है कि जब जनाब ज़ैनब ने अपने भाई का लाशा देखा तो पूछती हैं, क्या तुम मेरे भाई हुसैन हो? अरे कोई नेज़े से मारता था, कोई तलवार से वार करता था, कोई तीर मारता था तो कोई पत्थर मारता था, और हाँ, जिसके हाथ में कुछ नहीं आया उसने करबला की तपती हुई रेत मेरे इमाम के ज़ख्मों पे छिड़क दी। हाँ अज़ादारों, जनाब सैयदा के लिए लिखने वालों ने उन्हें उम्मुल फ़ज़ाइल का लक़ब दिया है कि फ़ज़ाइल की माँ। लेकिन जहाँ बीबी के फ़ज़ाइल कमाल के हैं वहाँ इनके मसाइब भी कम नहीं। अरे आप उस माँ की गुर्बत का अंदाज़ा इसी से लगाएं जो कभी करबला में अपने हुसैन का पामाल लाशा अपनी गोद में रखती है, कभी ज़िंदान में सकीना को रोती है, कभी बगदाद के पुल पे मूसा कासिम को रोती है, तो कभी सामरा जाकर इमाम हसन अस्करी को रोती है। आज़ादारों, अरबाब मक्तल लिखता है कि जनाब सैयदा ज़िंदान में हर शब अपनी औलाद के साथ गुजारा करती थी, और जब हुक्म रिहाई मिला तो जनाब सैयदा अब काफ़िले के साथ गई हैं। जब हुक्म रिहाई मिला और काफ़िला मदीने की जानिब रवाना हुआ तो जनाब सैयद सज्जाद से जनाब ज़ैनब ने फरमाया, ए सैयद सज्जाद, बशीर से कहो कि वो काफ़िला ज़िंदान की जानिब से लेके चले। अरे जब काफ़िला ज़िंदान पहुंचा है
तो बीबी उम्मे रबाब को एक छोटी सी कब्र नज़र आई। वो कब्र देखी थी कि तड़प गई, रोना शुरू कर दिया। फरमाती थी, उठो सकीना उठो सुए करबला चलो, उठो सकीना उठो सुए करबला चलो, बाबा के पास ओढ़ के नन्ही रिदा चलो, बीमार भाई गोद में ले जाएगा चलो, बीमार भाई गोद में ले जाएगा चलो, असगर को देखना है तो जल्दी ज़रा चलो, इतना तो हम न चाहिए पानी की बात पर, इतना तो हम न चाहिए पानी की बात पर, अब्बास इंतज़ार में होंगे फुरात पर। हाँ ज़ादारों, काफ़िला वहाँ जिंदान से रवाना हुआ, करबला पहुँचा। करबला में 3 दिन तक बीवियों ने इमाम हुसैन का मातम किया। अब जब करबला से काफ़िला रवाना होने के लिए तैयार हुआ, अमारियाँ तैयार हुईं, तो जनाब ज़ैनब ने देखा कि एक बीवी इमाम हुसैन की कब्र से लिपटी हुई हैं और गिरिया कर रही हैं। जब जनाब ज़ैनब करीब गईं तो देखा वो सकीना की माँ उम्मे रबाब हैं। मुखातिब करके पूछा, भाभी क्या आप मदीने नहीं चलेंगी? अरे फरमाया, ए ज़ैनब, मेरी एक बच्ची जिंदान में रह गई, मेरा बच्चा असगर इस करबला में रह गया, मेरे मौला की कब्र भी करबला में है, मैं मदीना जाकर क्या करूँगी? अलगरज काफ़िला मदीने की जानिब रवाना हुआ। अब जब मदीने से थोड़ा पहले काफ़िला पहुंचा तो जनाब सैयद सज्जाद ने बशीर से फरमाया, बशीर हम मदीना बाद में दाखिल होंगे, पहले तुम मदीने जाकर ऐलान कर दो कि काफ़िला आले रसूल लुटकर वापस आ गया, हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे करबला में शहीद कर दिए गए, कहीं हमें इस हालत में देखकर कोई बीमार मर ना जाए। अरे कौन था वो बीमार जिसके मरने का डर था? आज़ादारों, हुसैन की बेटी सुगरा, जो अली अकबर की फुरकत के दिन गिना करती थी, अपने बाबा को दिन रात रोया करती थी। अब जब अहले मदीना ने बशीर की ये सदा सुनी कि हुसैन करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद कर दिए गए, तो मदीना में कोहराम बपा हो गया। तमाम मदीने वाले रोज़े रसूल पर आ गए। जनाब ज़ैनब ने जनाब सैयद सज्जाद से फरमाया, ए सैयद सज्जाद, मुझे नाना की कब्र पे ले चलो, मैं नाना की कब्र पे जाऊंगी। अरे बीवी अपने नाना की कब्र पे आई, रोज़े रसूल पे आई और अपनी नाना की कब्र से लिपट गई। रोकर फरमाया, नाना मैं आपके हुसैन की सुनानी आई हूँ। नाना मैंने 70 कदम के फासले से अपने भाई का गला कटता देखा है। नाना मैं कहती रही कि तुम्हारे नबी का नवासा है। नाना मेरी किसी ने ना सुनी। नाना अगर यहाँ नामहरमों का मजमा ना होता तो मैं आपको अपने बाजुओं के नील दिखाती, आपकी उम्मत ने रसन बांधी थी। नाना हमें इतने ताजियाने मारे गए कि हमारे जिस्म ज़ख्मी हो गए। एक मरतबा जनाब सैयद सज्जाद ने अहले मदीना को मुखातिब करके फरमाया, ए मदीने वालों, जब रोज़े आशूर मेरे बाबा आखिरी विदा को आए थे तो उन्होंने मुझसे कुछ वसीयतें की थी। उन्होंने फरमाया, ए सैयद सज्जाद, जब मदीना वापस जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि जब भी ठंडा पानी पिए तो नवासा रसूल को याद कर ले। अरे मैं नबी का वो नवासा हूँ जिसे बेदर्दी के साथ करबला में मारा गया। मौला ने 2 मकामात पर अपने शियों को याद किया। मौला फरमाते हैं, ए काश तुम लोग करबला में होते उस वक्त जब मैंने अपने बच्चे के लिए पानी मांगा और किसी ने तरस नहीं खाया। अज़ादारों, जनाब सुगरा एक गोशे में थी। जब काफ़िला आया तो देख रही हैं, एक एक बीबी की गोद देख रही हैं। फिर जनाब ज़ैनब ने पूछा, सुगरा क्या बात है? फरमाती हैं, ए फूफी अम्मा, तमाम लोग शहीद हो गए। अरे मेरा एक छोटा भाई अली असगर था, मेरी एक बहन सकीना थी। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, ए सुगरा, अली असगर करबला में तीर का निशाना बन गया और सकीना रिहाई का अरमान लिए जिंदान में घुट घुट के मर गई। उसे मरने के बाद भी रिहाई ना मिल सकी। आज़ादारों, अलविदाई पुरसा है, आज रोने में कोई कमी ना हो। आज इमाम ज़माना की यतीमी की रात है। इमाम हसन अस्करी की कुल उम्र 28 बरस थी।
جب مولا کو زہر دیا گیا تو ایک مرتبہ ایک شخص نے دیکھا کہ مولا بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. پوچھتا ہے مولا کیا بات ہے, آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا مجھے زہر دے دیا گیا ہے. پھر فرماتے ہیں میرے اندرونی اعضاء کھل گئے. ارے حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے تھے اور حسن عسکری کے اندرونی اعضاء کھل گئے تھے. اب ایک مرتبہ مولا نے امام زمانہ سے فرمایا کہ مجھے لٹا دو, مجھے نکاحت ہو رہی ہے. امام زمانہ نے اپنے بابا کا سر اپنی گود میں رکھا, خود روتے جاتے تھے اور اپنے بابا کے آنسو صاف کرتے جاتے تھے. اب کہہ رہے تھے بابا میں یتیم ہو رہا ہوں. ارے ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کا سر اس کے بیٹے کی گود میں ہو, لیکن ہائے میرا مظلوم امام, کربلا کی تپتی ریت پہ سر تھا. جب شمر نے امامہ اتارا اور بالوں میں ہاتھ ڈالا, ایک ہاتھ میں خنجر تھا اور ایک دکھیاری ماں نے برقع بچھا دیا. اے شمر میں نے بڑی مشقتوں سے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا. اے شمر میرے حسین کو ذبح نہ کر. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار ہماری اس کلیم سے عبادت کو فرما اور ہمارے وقت امام کے قبول تعلیم فرما.